ਫਾਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ HTML ਚ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਫਾਰਮ CSS ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਸ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡਸ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਮੈਥਡ ਪੋਸਟ। ਠੀਕ ਆ, ਪੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਲੇਬਲ, ਨੇਮ ਤੇ ਇਨਪੁਟ। ਇਨਪੁਟ ਚ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਦ ਆ ਨਾ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ MySQL ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨੇਮ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੀ ਆ ਇਹ? ਕਿ ਨੇਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। MySQL ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ MySQL ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਸਿਲੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਇੰਸਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਨੇਮ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨੇਮ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਈਮੇਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਈਮੇਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬਰਥਡੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਨਪੁਟ ਟਾਈਪ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਥਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣੀ, ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਜੈਂਡਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੈਮਲ ਕੇਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਡਾਲ ਲਓ। जी है, रुक जाओ, अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, जेंडर मेल ते अगे इनपुट मेल, ठीक है। इसकी इनपुट टाइप रेडियो, चेक बॉक्स होंगे ज्यादा, तू मेल फीमेल दोवें थोड़े करने। अच्छा, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਣਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫੀਮੇਲ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਸ ਇਨ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਮੇਲ, ਐਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੀਮੇਲ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਓ, ਅਜ਼ੈਂਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਹਜੇ। ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ PHP ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ htdocs ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ PC ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਲ ਡਿਸਕ C ਜ਼ੈਂਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਬੈਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਵਰਕ ਬੈਂਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜ਼ੈਂਪ MySQL ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ, PHP MyAdmin 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਓਕੇ, ਵਰਕ ਬੈਂਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ? ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ,
जैम्प आई डाउनलोड करना, फिर मैं तेन दसूंगा, ठीक है। जैम्प डाउनलोड करके ना मैंने कॉल कर ली, तो मैं फिर तेन दस दूंगा की करना। जो जैम्प डाउनलोड कर लेना ना, उਦੋਂ दस देना। तो आ जो जैम्प वाला फोल्डर लोकल डिस्क सी च बन जाना ਤੁਹਾਡੇ, अच्छा ठीक है। अंदर जाना तो HT डॉक्स वाला फोल्डर होना, PHP के सारे फोल्डर तुसीं इत्थे बनाने हैं, ठीक है। जिद्दां मैं सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं PHP के। हुण ਇਹ ਤੇ ਫੈਚ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗੋ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ PHP, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਫੋਲਡਰ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ठीक है। PHP 1 ਤੇ क्लास 2 ਆ, ठीक है। ਇਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा अब यार क्लास का नाम की है PHP। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस तरह आ गए। ओ, ठीक है। नेम, ईमेल, बर्थडे, जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। उस तो बाद होंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स ਦਾ ਕੀ किस तरह दे मतलब सब्जेक्ट्स, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ जी ज़्यादा सिलेक्ट करनी है। ये असी चेंज कर देना इंग्लिश, नेम भी नाल जी। हाँ ओके, मैथ और साइंस, ठीक है। ये नेम चेंज करना, एक चेंजिंग हो रहा नहीं। सब्जेक्ट्स इस तरह लिखोगे तो सिर्फ एक वाला जोड़ा ओ होना, ठीक है। सिर्फ एक जोड़ा लेटेस्ट वाला होया ओदी वैल्यू उधर जानी है, बाकी नहीं जाने। मल्टीपल चूज ज़्यादा करने अलग-अलग नेम नहीं, फिर आ करनी है सब्जेक्ट्स के अंदर ही, अरे के अंदर जान, ठीक है। सारे अरे याद है ना जावास्क्रिप्ट वाली, मतलब ज़्यादा चीज़ा डाटा। इसको वाइट छोड़ दो ना, उसकी चीजिंग करी। अच्छा जी, आ गए सब्जेक्ट्स। ओ अच्छा, इधर चेक बॉक्स भी करना है, ठीक है। चेक बॉक्स, ये देखो, ठीक है। अब इसका डाटा हमने कैसे फैच करना है, ये तो पहले भी बनाया हुआ है, ठीक है। इसका अब डाटा कैसे फैच करना है, उसके लिए चाहिए हमें बटन एक सबमिट का। लेकिन यहाँ पे हमने बटन का बताना भी है। वैसे तो अगर कुछ नहीं डालोगे फॉर्म के अंदर वो सबमिट ही होगा, लेकिन कभी कभी वो नहीं आता, तो टाइप सबमिट, ठीक है। और एक और बटन होता है रीसेट का, सारा डाटा रीसेट करना है, ठीक है। ये देखो सबमिट करेंगे। अभी हमने क्या किया है, एक्शन को खाली छोड़ा है, ठीक है। खाली मतलब ये इसी पेज पे रिफ्रेश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्लास 2 अंडरस्कोर प्रोसेस, कि जिस जहाँ पे फॉर्म का डाटा जाए, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको दे देना है डॉट ये डाल के क्लास 2 प्रोसेस, ठीक है। वही और डॉट PHP। अब इधर जाके हमने क्या करना है, पहले देखना है कि डाटा कौन कौन सा आ रहा है। PHP इस तरह, ये PHP का जो भी कोड लिखना है तो इसको इस तरह बंद करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क डाल के PHP लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क डाल के उसको बंद करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने लिखना है प्रिंट आर और आगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब जो भी डाटा आ रहा होगा फॉर्म से, कोई किसी भी तरह का डाटा, तो वो यहाँ पे शो करवा देगा उसकी फॉर्म में, अरे की फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, मैं इसको सबमिट करूंगा। एक मिनट, अच्छा वो पहले रिफ्रेश नहीं तक किया। ये देखो वो उस पेज पे गया, अरे आई, फुल नेम सही मोहम्मद अनस बुखारी, ईमेल अनस 14529, ठीक है। बर्थडे वो डेट आ गई, जेंडर मेल आ गया। सब्जेक्ट्स में एक मैंने सेलेक्ट किया था, 0 पे बस मैथ आ रहा है। अच्छा, ये तो है कि सारा डाटा शो। अब हमने रिक्वेस्ट क्यों लिखा है कि ये यहाँ पे जो हमने मेथड लिखा ना पोस्ट, ये भी लिख सकते हैं रिक्वेस्ट की जगह, कि जो भी पोस्ट के जरिए आ रहा होगा वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो पोस्ट किया है तो भी वो आ जाएगा। इसके दो मेथड होते हैं, गेट या पोस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम गेट करेंगे तो गेट वाला नहीं आएगा। गेट वाला अगर वहाँ पे मेथड भी गेट होता तब आना था, अब गेट वाला नहीं आ रहा, ठीक है।
उसके लिए फिर हम रिक्वेस्ट यूज करते हैं, वो या पोस्ट है या गेट है, दोनों वो आ जाते हैं इसमें के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पूरा का पूरा डाटा ये शो करवा दिया ना, इसको हम केली केली चीज कैसे शो करवा सकते हैं? ऐसे क्या? फर्क क्या है? जो गेट अगर यहाँ पे कर देंगे ना हम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, केला मैं यही सबमिट कर देता हूँ। ये देखो, ये ना ऊपर इसके अंदर आ गया, यूआरएल के अंदर आ जाते हैं सारा डाटा, ठीक है, उसकी नेम्स के साथ, पोस्ट में पोस्ट। ठीक है। पोस्ट में वो बैकग्राउंड में जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जब कहाँ जहाँ कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन हो या पासवर्ड वगैरह हो, उसको गेट में नहीं भेजते, पोस्ट में। उसको पोस्ट में भेजना है। गेट में सिर्फ जाते हैं जब हम कोई चीज सर्च करते हैं ना, जैसा कि यूट्यूब। मतलब कि उसका मैं बताता हूँ, एक मिनट, लोकल अबाउट होस्ट, अस और वैसी जो चीजें लिखी होती हैं ऊपर आ जाती हैं। मैं बताता हूँ एक, तो क्या आखिरी देखिए थे नंदा पे होना प्राइवेट था। बेटे, ये दो घड़ी किधर गए? हाँ ऑन टू नो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आना, नहीं आना भाई। चलो CSS नहीं आ रही अभी। मैं ये मैंने कैटेगरी पे सिलेक्ट किया ना, वो देखो आ रहा है एड क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो 1 ID होगी वो हम डाटाबेस से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो वहाँ पे किया ना माविया, डाटाबेस के अंदर ID बनाई, वो मतलब जब टेबल बनाया उसके अंदर एक ID होती है, नाम ये वो, नाम है। ठीक है। ID एक बनाते हैं ताकि जो और किसी की नहीं होती है वो वाली यूनिक ID, होती ठीक है, यूनिक होती है। तो वो फिर जिसकी यूनिक, जिसकी 1 होगी उसका सारा डाटा हम कर लेंगे, वो भी आगे जा करते हैं। अच्छा, ये तो था कि सारा डाटा हमने कैसे शो करवा दिया। अगर हमने ये सारा डाटा अलग अलग शो करवाना है, मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई H1 के अंदर, मतलब मैंने अब HTML के साथ शो करवाना, इसके अंदर मैं अपना नाम शो करवाना चाह रहा हूँ जो उससे आ रहा है, PHP से आ रहा है, यहाँ पे मैंने PHP लिखना उसी तरह। अब जब अरे आती है ना, ये डाटा अरे में आ रहा था, तो हमने प्रिंट आर यूज किया सारा डाटा देखने के लिए। लेकिन अगर हमने इसका एक चीज शो करवानी है, अकेला नेम शो करवाना है, तो मैंने लिखना है एको, PHP में प्रिंट आर यूज होता है अरे के लिए, अरे शो करवाने, एको होता है वैसे कोई चीज शो करवाने के लिए, स्ट्रिंग वगैरह कोई वेरिएबल। कोई भी। हाँ, रिक्वेस्ट वैसे ही आगे वो अरे वाला, और उसके अंदर कौन सी वाली हमने फील्ड शो करवानी है, फुल नेम, ये वो वाला है जो हमने वहां पे नाम नेम लिखा था, ये वाला, ये वाला नेम फुल नेम, ठीक है। इससे हम फिर अगले पेज में उसकी पहचान करें। अभी सबमिट करूंगा, सही मोहम्मद अनस बुखारी वो H1 के अंदर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम, हाँ, इसको H1 वो प्रिंट आर के लिए छोटी ब्रैकेट जरूरी है, एको के लिए नहीं जरूरी, ठीक है। प्रिंट आर का मतलब बढ़िया। प्रिंट, हाँ, ठीक है। अब इसी तरह हमने बाकी डाटा शो करवाना है, अगर H3 के अंदर फुल नेम की जगह आ जाएगा यहाँ पे ईमेल, उसके बाद आ जाएगा क्या था, जेंडर, बर्थडे, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी ये एम्प्टी थे, ठीक है। और जेंडर क्यों इस तरह आ रहा है, क्योंकि हमने वो सिलेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है। वो बाकियों की खाली वैल्यू जा रही है, जेंडर हमने सेलेक्ट नहीं किया, उसने जेंडर भेजा ही नहीं है। इंग्लिश मैथ भी कर लेते हैं फिलहाल, जेंडर भी आ गया, ठीक है। अगर सेलेक्ट करना, अभी हम ये भी देखेंगे कि वो एरर कैसे खत्म करना है, अगर ना भी किया सेलेक्ट तो वो एरर ना आए, ठीक है, कम से कम ये आ गया। उसके बाद हमने कर लेना है वो सब्जेक्ट वाला कैसे करना है। सब्जेक्ट को हम इको नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो आ रही है अरे, ये देखना, उसने ना एरर दे देना है कि अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, कि हम अरे को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। लाइन भी देता है कि लाइन नंबर 10 पे एरर है हमारा, ठीक है, ये 10 लाइन, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, या तो प्रिंट आर यूज कर सकते हैं, प्रिंट आर, लेकिन उसका क्या नुकसान है, उसका नुकसान ये है कि वो इस तरह शो हो रहा है उनकी इंडेक्सेस के साथ। तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं लूप, याद है ना, वो जावास्क्रिप्ट में भी की थी, फॉर लूप इस तरह की, ठीक है। तो लूप कैसे यूज करनी है अब, प्रिंट ऐसे PHP ऐसे रहने देना, क्योंकि हमने PHP की लूप यूज करनी है, फॉर ईच की लूप होती है, ठीक है। कोई भी अरे को शो करवाने के लिए फॉर ईच की लूप,
पहले यहाँ पे हमने लिखना है कौन सी अरे थी, वो थी रिक्वेस्ट सब्जेक्ट्स वाली, ठीक है। ये अरे है, इसको हमने एज वन सब्जेक्ट कर लेना है, एज सब्जेक्ट के मतलब अब क्या करेगा, वो इस सब्जेक्ट्स में से जाएगा और हर सब्जेक्ट को बार बार इस वेरिएबल के अंदर सेव करा देगा। तो अब हमने एक सब्जेक्ट इस वेरिएबल के अंदर सेव हो गया, तो एको सब्जेक्ट। अभी देखते हैं, लूप चली, इंग्लिश मैथ दोनों आ गए। अब थोड़ा सा इसको वो करने के लिए, ठीक करने के लिए, एको के आगे हमने लगा देना है डॉट एम्प्टी स्ट्रिंग। डॉट की का क्या मतलब, हमने इन दोनों को मिला दिया, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम प्लस के साथ करते थे उस तरह ये किया है, ठीक है। अभी देखना तो उनके दरम्यान में एक स्पेस आ गई है, ठीक हो गया, समझ आइए इतनी की। ये अब जाके वो करना, फॉर्म बना के उसको सबमिट करवाना है। एक ये वाले सारे वो करने हैं तुम लोगों ने, ये क्या उसको कहते हैं, डाटा टाइप्स वाली, तो मतलब इस तरह सब ये भी आ जाएं, ये भी आ जाएं। ये ध्यान रखना है कि जो चेक बॉक्स है उसमें सिर्फ ये वाला, ठीक है। अगर एक टाइप का आपने ज़्यादा वैल्यूज़ भेजनी है, सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ ज़्यादा थी, तो इसलिए आपने उस अरे यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह सेलेक्ट जो होता है, वो जो क्या उसको कहते हैं, वो ड्रॉप डाउन जो आता है, वो भी एक कल बना लेते हैं। वो कौन सा होता है, नहीं वो तो पता है, एजुकेशन, नहीं उसमें एक सेलेक्ट करना ना, एजुकेशन। अच्छा जी, सिलेक्ट इस तरह बनता है, ऑप्शन मैट्रिक इंटरमीडिएट और बैचलर, ठीक है। और इनकी हमने फिर वैल्यूज भी देनी है कि आगे कौन सी चीज आएगी। ये तो है जो दिखेगा, ठीक है, और आगे जो चीज भेजनी है उसको हमने करना है वैल्यू, जैसे हमने वो नीचे इनपुट चेक बॉक्स और रेडियो वाले में किया ना, उसी तरह। और यहाँ पे हमने फिर इसको वैसे ही नेम भी देना है जिससे हमने उसको आगे जाके पहचानना है, ठीक है। तो एजुकेशन, इसमें से भी क्योंकि अब एक ही सिलेक्ट होती है, ये देखो मैट्रिक इंटरमीडिएट। अगर आपने अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मैट्रिक पहले सिलेक्ट आ रही है, तो उसके अगर हमने करना है कि पहले कोई भी ना सिलेक्ट हो, तो हमने क्या करना है, इसकी हम वैल्यू खाली सिलेक्ट योर एजुकेशन, वो जैसे याद है प्लेस होल्डर होता है इन, ठीक है, उस तरह, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर रिक्वायर्ड लगा दोगे ना, सिलेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड, तो वो इसको सबमिट नहीं होने देगा क्योंकि वो उसकी वैल्यू पहले वाले की खाली है, ठीक है। सिलेक्ट, तो अब इसको भी हम करते हैं, देखते हैं। वो बताता हूँ ना, वो रिक्वायर्ड तो उसमें से ख़त्म भी हो जाता है, HTML के अंदर से हम इंस्पेक्ट पे जाके ख़त्म कर सकते हैं रिक्वायर्ड को। वो उसकी दूसरी अच्छा, अब यहाँ पे शो करवाना है हमने उसी को, ठीक है। तो वो क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही, तो यहाँ पे एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि वो बैक एंड से आ रहा था, तो वो बैचलर वो मेरी एजुकेशन भी आ गई। अभी हम इस रे को ख़त्म कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता लग गया हमने सारे वो ठीक ठाक कर लिए हैं, तो हम इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट इसमें ऐसे होता है, ठीक है। तो ये देखो, अब वो ख़त्म हो जाएगा, हमने वो HTML के अंदर शो करवा दिया सारा डाटा, ठीक है। अब आप लोगों ने कौन सा वाला बनाया हुआ है प्रोजेक्ट, बल्कि तुम लोगों को यहाँ पढ़ा ही होना है, टीचिंग, ये वाला था ना, बैच वन तो था, नहीं नहीं, जो तुम लोगों ने काम किया वो देख रहा था। यहाँ पे होना है FE, हाँ भी है, रीड करते ही लैपटॉप जी। सारी रीड हो गया, नहीं यार इधर खुल गया। नहीं मैं सेव किया। तो तुम्हें भी लैपटॉप का कुछ किया, विंडो विंडो दोबारा की नहीं, पर वो तो शेयर आ मैं वो दोबारा शायद हाँ होगा, इधर। नहीं वो दोबारा करना पड़ना है ना लैपटॉप चेंज की। अच्छा कौन सा किया था तुमने,
ये वाला एक होना है फॉर्म वाला। बनाया था नहीं नहीं बनाया ये था तो पूरा नहीं किया वो खाना ही है। जब पीछे स्टेटस में बनाया था जो हाँ उसमें वो है फॉर्म, इसमें होना है लाइट इवेंट्स में। ये देखो, अब ये चीज़ें हम जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। नेम देना है, और ये बल्कि इसको करके ना देखो। सिर्फ हम एक जगह टाइम अच्छा, ये तो अभी हमने बस उसको शो करवाया है ना। कलर भी चेंज हाँ, ये किसने किया था? मैंने। मैंने किया नहीं, तू केड़ा किता सी? आपने नहीं मैंने तो कलर ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ। कोई काम ही नहीं ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ बनाया पर फिर ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾयਦ, ਆ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ। मैं भी वो बनाई है पूरी। ਹੂੰ देखे ਅੱਛਾ चलो, नहीं मैं कितों देखने ਸੀ। अच्छा, देखे इसमें क्या है सीन है कि अभी डाटा हम सिर्फ इस पेज पे शो करवा रहे हैं, इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला डाटा हमने डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, हाँ ये बैकएंड अभी हम कर रहे हैं, मतलब कि डाटा वगैरह प्रोसेस अभी इसमें प्रोसेस हो रहा है। अभी हम इसमें ये भी कर सकते हैं, उसका चेक कर सकते हैं कि नेम उसने दिया है कि खाली है, ईमेल है या नहीं, जेंडर है कि नहीं, बर्थडे, एजुकेशन। ठीक है, अब बर्थडे को हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट। अभी बर्थडे कैसे आ रही है, इस तरह। ठीक है, ये इसका पीएचपी का अपना फॉर्मेट है। अभी हम इसको, ये पीएचपी का फंक्शन होता है डेट। अभी इसमें हमने फॉर्मेट बताना है, डी छोटा मतलब डेट डेट 0102 इस तरह वाली। आगे मंथ, एम बड़ा मैंने डाल दिया। ठीक है, कोमा डाल के वाई, और फिर इसको आगे देना है स्ट्रिंग टू टाइम, और इसके अंदर वो वाली डेट जो है इसके अंदर अब दे देनी है। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो उस फॉर्मेट में आएगा 10 अप्रैल 2025। ठीक है, इसी तरह अब हम इसको मतलब कोई और फॉर्मेट, अगर मैं वाई छोटा लिखूंगा तो केला 25 आएगा, 2025 की जगह केला 25। जैसे इस तरह भी डेट लिखते हैं ना कुछ कि सिर्फ आखिरी वाला मंथ आ रहा होता है, या फिर इसको, हाँ ये देखना। ठीक है, डी बढ़ा दी कितने और अगर तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं होना मसला, नहीं वो डे आ गया, मतलब हम इस तरह कर सकते हैं। ये देखो, जुमेरात, आज जुमेरात है। ओ अच्छा, नहीं मैंने बस 10 सेलेक्ट की थी। अच्छा, थर्सडे 10, यहाँ पे एम, अगर हम इसको एम की बजाय, बड़े एम की बजाय जे लिख दें, इन्होंने जे किया मेरे ख्याल से। जे हाँ वो, नहीं जे नहीं है, कुछ और था। M छोटा है शायद, यही था। नहीं, फिलहाल एम ही, कल 2 एम कर लें अगर। नहीं, वो अप्रैल पूरा आता होता है वो, चलो देख लेंगे। थर्सडे 10 अप्रैल 2025, इस तरह आप कोई भी फॉर्मेट कर सकते हो। ये इधर उधर करना है, मतलब किसी मुल्क का कोई होता है, किसी मुल्क का कोई, वो कर सकते हो। अच्छा, और ये जो अब हमने अगला काम क्या करना है, एक मिनट, ये जो रिक्वेस्ट है हाँ इसकी जगह पोस्ट लिख हाँ, अगर आपका यहाँ पे पोस्ट है ना, मेथड पोस्ट, हम्म। तो वहाँ पे भी आप पोस्ट लिख सकते हो रिक्वेस्ट की जगह, मतलब ये अंडरस्कोर आना ही है, फिर पोस्ट आएगा। ठीक है, इस तरह। अभी तो हमने डायरेक्ट शो करवा दिया है, अब हमने कल क्या करना है कि इसको, इनको पहले वेरिएबल्स के अंदर सेव करवाना है। ठीक है, फिर शो करवाना है। ठीक है, मतलब इनके वेरिएबल्स बना लेना, और ये भी चेक करना है कि अगर ये आ रहा है तब वेरिएबल के अंदर सेव हो, अदरवाइज वेरिएबल एम्प्टी रहे, फिर एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने अब कल करेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जाके, वो आधे घंटे के अंदर अंदर हो जानी है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्म बना ला। हाँ दोनों ही करो, कोई नहीं, पढ़ दे बहुत उसी। ठीक है, इस तरह बल्कि हुआ ना, अगर कोई तुम लोगों ने जो बनाया है उसके अंदर फॉर्म है, तो उसी फॉर्म को ज़्यादा बड़ा करके, मतलब उसके अंदर और फील्ड ऐड करके फिर उसके अंदर करना, फिर आपको पता लगेगा कि हमने इस वाले फॉर्म को कैसे यूज़ करना है ना। ठीक है, तो जैम फाइल हो जैम फाइल नहीं, मैं लिंक भेजूंगा। जैम एप्लीकेशन है, मायो ने साढ़े एमपी लिख देना सी उठे
नहीं, ये लिंक भी भेजना सी, ये वाला इसमें से देख लेना कौन सा वाला करना है। ये शायद तो मैंने उसको रीसेट किया है पहले लैपटॉप कोमर को, नहीं। तो फिर उसके अंदर होनी पहले ही। ठीक है, इसके अंदर से आके कर लेना डाउनलोड, ये मैं उसके अंदर भेज देता हूँ ग्रुप में। डाउनलोड हाँ हाँ, उमर के पास पहले ही होनी है। नहीं नहीं, अब MySQL जो डाउनलोड किया डाउनलोड किया क्यों दूसरी ये मैं इसके अंदर से भेज दिया। ठीक है, मैं वो क्लास भी कर दूंगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने करना है कि इसको डाटा को सेव कैसे करवाना है, फिर डाटा फैच कैसे करवाना है। ठीक है, वो मतलब वही MySQL की चीज़ें लगनी है, लेकिन वो क्योंकि हमने MySQL तो वो के लिए यूज़ करते हैं वर्क बेंच के अंदर अगर डायरेक्ट यूज़ करनी है, लेकिन हमने इसको शो करवाना है तो PHP के साथ MySQL यूज़ होगी। ठीक है, डाटाबेस इसके साथ, और फिर उसका भी सारा डाटा जो आता है वो ऐसे ही आता है। इसके अंदर जब डाटा आता है ना, इसी तरह आना है। वो रिक्वेस्ट की जगह हमने जो नाम दिया ना वेरिएबल को, वो आना है, और ये कॉलम का नेम, वो जो कॉलम का नेम नहीं दिया उन्होंने, हाँ कॉलम उस तरह। और फिर हमने इसके अंदर टेबल के अंदर करवा लिया करना है। मतलब ये अभी मैं दिखा देता हूँ, इधर HTML वाले टेबल में शो करवा देना। PHP स्टॉर्म ये है ना जो, देखो ये PHP का है, ये इसकी एप्लीकेशन है, ये लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने दी हुई है। ये देखो इसमें क्या है, यहाँ पे मैं जाता हूँ ना ऐड न्यू फैसिलिटी पे, ये मैं फॉर्म बनाया है। ठीक है, डिज़ाइन जिस तरह मर्जी कर लो। टेस्ट में करता हूँ, इधर से सिलेक्ट आ गया, ये सिलेक्ट आ गया, ये टेक्स्ट एरिया आ गया। ठीक हो गया। हाउस नंबर इसका मैं तुम लोगों को वो भी खोल के दिखा देता हूँ साथ साथ। तो इसकी डेटाबेस वो MySQL नहीं है, इसकी SQLite है, लेकिन चलो उसमें होती वो वैसी ही है, वो देखना। ये देखो टेबल्स इको हम किस में फैसिलिटीज में ऐड करना है ना, तो देखो वो उसी तरह आ रहे हैं ना। हाँ उसी तरह। ये देखो आईडी आ गई, टाइटल आईडी यूनिक नहीं है। ठीक है, टाइटल कैटेगरी ये उनके नाम है कॉलम्स के। ठीक है, ये डाटा पड़ा है। अभी हम इसमें ये नया वाला ऐड करते हैं, इसमें कोई भी डाटा ऐड करिए। ये देखो डाटाबेस का फ़ायदा, मतलब क्यों हम डाटाबेस यूज़ करके वो बताने लगा हूँ। अभी मैंने इसमें सबमिट फैसिलिटी किया ना, जब सबमिट होगी तो इस तरह हमने ये मैसेज शो करवा दिया। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना और नीचे जाएंगे तो ये देखो ये टेस्ट वाला जो मैंने अभी ऐड किया है वो आ गया। अब ये शो कहाँ पे होगा, मैं होम पे जा रहा हूँ तो ये देखो टेस्ट वाला यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे ये सारे वाले शो हो रहे हैं। ये देखो ये भी आ रहा है, ये लोडिंग इस तरह वाला यहाँ पे सारे होंगे। लेकिन अगर मैंने इसकी पूरी डिटेल देख ली, मैंने इतनी डिटेल ऐड की थी, मैं व्यू डिटेल्स पे जाऊँगा, वो देखो टेस्ट आ गया जिस तरह अभी हम करके देखे हैं। ठीक है, वहाँ पे डाटा हमने शो करवा दिया, कैटेगरी आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई, इसका पूरा एड्रेस आ गया। इसके अलावा मैंने कैसे उसको यूज़ किया है, वो जो हमने वो नहीं ऐड किया, क्या उसको कहते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये वाला क्योंकि ये मैप पे यूज़ होता है, पता है ना। तो ये अब हमने मैप पे कैसे शो, ये देखो ये है ना। अभी देखते हैं हमारे वाला किधर है। मैंने वो ये देखो ये नहीं, ये कोई और है। और ये देखो ये टेस्ट वाला, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को यूज़ करके मैंने उस पर शो करवाया, और फिर इस वाले के अंदर भी उसकी डिटेल शो करवा दी। ये डाटाबेस का फ़ायदा है, मतलब कि हमने वहाँ से ये नहीं है कि इसको नया बनाएं तो ये करें वो करें, ये नहीं। ठीक है, वो वहाँ से गए हैं हम, डाटाबेस में ऐड किया, बात ये वाली फंक्शनैलिटी हमने पहले ही ऐड की हुई थी। ठीक है, तो ये साथ ही वो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ये फॉर्म ये क्या कर रहा है मैप, ये सारी फैसिलिटीज़ को यहाँ वहाँ से ले रहा है, और इसके अंदर उनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बेस पे यहाँ पे शो करवा रहे हैं। ये देखो ये सारे वैसे बहरीन के थे। ठीक है, ये देखो बहरीन में सारे वहाँ पे शो हो रहे हैं जिस तरह होता है। ठीक है, इस तरह। तो ये डाटाबेस का फ़ायदा है। ठीक है, मतलब कि आपने कोई ये नया HTML से नहीं बना रहे, ये सिर्फ एक ही बनाया है। इसको बाद में जितने वो ज़्यादा रिकॉर्ड्स थे उतने ज़्यादा ये शो करवा दिए लूप लगा के। ठीक है, ये डिज़ाइन एक ही है। अब ये नहीं है, मतलब ये अभी कितने पेजेस की वेबसाइट। ये पेज एडमिन का रहा है। हाँ ये एडमिन का है। वैसे कैटेगरीज में मैंने ये एक ही बनाया हुआ है, वो शो हर जगह मैं करवाई जा रहा हूँ डाटे के हिसाब से। मतलब ये कैटेगरी में क्या है, सिर्फ रिसाइकल बिन्स वाले सारे शो होंगे, ये देखो। ठीक है, कम्युनिटी में सिर्फ कम्युनिटी वाले शो होंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है कि जिन फैसिलिटीज़ की कैटेगरी सेम है वो वाले शो हों।
ये होम जो था उसमें सारी शो हो रही थी, ठीक है। तो ये डेटाबेस का फायदा है, मतलब कि आपको पेज बार बार, ये सर्च भी डेटाबेस होता है। ये देखो मैं करता हूँ साइकिल, ये देखो उसने सेलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इको फैसिलिटीज वेयर, ये वाला जो लाइक डाल के आगे ये, लाइक ठीक है, वेयर 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 हाँ ठीक है, ये इस तरह वो सारा हमने इसमें आगे करना है। अभी आपने ये इसकी के लिए की प्रैक्टिस करके आनी है। कोई फॉर्म जो आपका बना हुआ है, कोई डिजाइन वाला ही बेशक कर लेना, और उसको शो भी डिजाइन में करवाना है। ये सारा जो डाटा है, कोई टेबल बना लेना उसी डिजाइन का, उसको उसके अंदर शो करवाना, फिर आपको साथ साथ ज्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। जैसे ही दोबारा कर लेते हैं वो दोबारा इस पे शो करा सके, शो एक कोई मतलब नहीं नहीं, ये वाला एक दफे शो होना है, ये देखो। दो डेटाबेस वो तो हम बाद में करेंगे ना, कि मतलब हर रिकॉर्ड की अलग डिटेल हमने का। सिर्फ एक शो करवा हमने सिर्फ इसमें से, हमने सिर्फ इसका चेक करना है। ये तो सिर्फ इसका डाटा जा रहा है आगे, अभी हम इसको डाटा कहीं सेव नहीं कर रहे। ये हम अभी सिर्फ डाटा को देख रहे हैं कि डाटा उस पेज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखना, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, मतलब डाटा हमारा फॉर्म से ही काम कर रहा है। अब इस वाले पेज से आगे हमने इसको प्रोग्राम करना है कि इसको डाटाबेस के अंदर सेव करो, इंसर्ट करवा दें, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं अगर ये ईमेल पहले ही है तो वहाँ पे एरर शो करवा दे, ये ईमेल पहले ही है, ठीक है। कोई इक्वल फड़ यार लेस देन मच्छर आ छੱਡेਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਦੇ घुटदा पे पागल मार दो हेलो उठ कर दिखा तड़े देख गया तड़े जाए गैप कितने क्यों गया फे गल गल अम्मी ने गल करा दी तबीयत पुछ लूगे। अच्छा बंद कर देते हैं।